Okay, so let me import the footage first. Previous session, you people are asking for footage, right? So guys, I will suggest you कि एक छोटा सा वॉक करता हुआ फुटेज आप लोग यू नो शूट कर लेंगे. Minimum size will be HD. Okay. Okay. So one more thing, I think first time I'm here importing the sequence footage. So how to import the footage here? I'm having the Targa sequence. I hope all you guys are aware about it. So you just need to drag the first frame of your footage. Okay. Generally, if you drag it, if you can find, so this is like only the first frame. Look at this. So what you need to do is select the footage, and here we have the path, right? So just click on this path option and select this and save open. Okay. So once it has been you know linked with the path, so here we can see, right? So sometimes it might be possible the people are taking the sequence plates and they're facing this problem. Okay, so you just have to redefine the path of your footage. Okay, now next that previous session we'll talk about the multiple mask option, right? So I hope all you guys are aware. Okay. Well, before we proceed, I want to show you something, guys. Just have a look. Here you can see I'm having a footage for the road code. Okay, and this project is belongs to for a stereo. Okay, so you can check it out. How much motion and how much grains are there in the footage. Check it out. Okay. So this is the raw play. Okay. So that means uh, if you are going to work on some Bollywood or Hollywood projects, so this type of footage you will find inside the production house. Okay. So this is like the raw play. Look at this. Okay. So, comparative, what I'm teaching, you can see the footage is quite neat and clean, where you can easily detect the edges, right? So there will be no as such motion blur and grains will be there, which will disturb you. So, स्टूडेंट्स को होता है कि सर ये फुटेज कैसा है, ब्लर हो रहा है या फिर इस टाइप से. तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के फुटेजेस से आपका सामना होगा. ठीक है. और इस तरह के केस में लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी जो पीछे वाला स्कार्फ का पार्ट है, वहाँ पे आप कैसे एज डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, राइट? सिमिलरली you can see the hand. Look at this, the fingers. Okay, so this is like always very challenging. Okay, if you can see the palm of this hand, look at this. Okay, and the next thing,
like whenever you'll go for the roto in VFX production hub, so generally you guys will find two folders. One is your short folder and one is your task folder. Okay, inside the short you're having the footage itself. Okay, and inside the task folder they have already plan like how you have to create the masks. So you can easily see it is already highlighted what you need to draw the things in form of mask. Check it out. Look at this. So these highlighted area represent the mask required inside the scene. Look at this. So, but aware, this is the footage for stereo project. So, at the end, you need to mask each and everything. It's not like only about the character. Apart from the character, you also need to mask the background things. And specifically, uh, like if you are going for stereo conversions, then पीछे की जो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी ब्लर होती है तो उनको हम लोग 1 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्लर आउट है उनको थोड़ी देर के लिए हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन सामने की जो चीज़ होती है ना उसको मास्क करना कंपलसरी होता है, क्योंकि सामने की चीज़, सामने इन द सेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा। ठीक है, तो कैमरे के हिसाब से जो चीज़ें फ्रंट में होती हैं उनको मास्क करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें डेप्थ ज़्यादा दिख रहा होता है। ठीक है, सर फ्रंट में या फोकस में? सॉरी। सर आप जो बोल रहे हैं ना कैमरे के फ्रंट में जो होता है, मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ मतलब फ्रंट में या कैमरे के फ्रंट फोकस बोलने रेंज का में जो हो। फ्रंट बोलने का सेंस ये है तुषार कि कैमरे से नज़दीक डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो जो कैमरे से नज़दीक वाली जो चीज़ें होंगी ना उनको मास्क करना कंपलसरी है काइंड ऑफ, क्योंकि उसमें हमारा डेप्थ सबसे ठीक ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ठीक है सर। यस। ठीक है सर। तो इस तरीके से यू कैन चेक इट आउट, और फाइनली सीन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मास्क, राइट। जो ब्लर चीज़ें होती हैं, थोड़े से डी फोकस वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका एक ओवरऑल मास्क बना के भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जैसे इस एरिया में। लेकिन सामने वाली जो चीज़ें हैं उसको यू ऑलवेज नीड टू मास्क। सो आई होप यू गाइज विल गेट एन आइडिया किस तरीके से चीज़ होती है। ठीक है, अब हम लोग अपने फुटेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मास्क की। तो कुछ फ्रेम मैंने यहाँ पे मास्क किया हुआ है, मैं पैरेलल फाइल भी ओपन कर ले रहा हूँ। सर यस, ये जो न्यू गेट इन टू पीसी से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद ये इस पे लाइसेंस वगैरह पूछता है, मतलब क्रैक लग रहा हु इज देयर? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। है। आपकी जी जी। वॉइस काफ़ी लो है बेटा, क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ मैं बोल रहा था कि न्यू जो डाउनलोड मैंने किया है वो इंस्टॉल होने के बाद लाइसेंस पूछ रहा है, तो मतलब क्रैक्ड वर्जन नहीं हो, क्रैक करना पता नहीं है कैसे करता है। देखिए, मैंने न्यू का सेटअप भी ग्रुप में डाला है, और मैंने एक वीडियो भी डाला है कि हाउ टू इंस्टॉल दैट सेटअप और उसको क्रैक कैसे करना है। तो प्लीज़ ग्रुप में जो चीज़ें हैं उसको आप एक बार डाउनलोड करके फॉलो कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, चलिए कोई इशू नहीं है।
सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखिए मैं कुछ फ्रेम मैंने यहाँ पे मार्क्स किया हुआ है. ओके, लुक एट दिस. ओके, कुछ इस टाइप से. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि यही सब्जेक्ट हमारा चल रहा था कि भाई टुकड़ों में क्यों मास्क किया जाए. ओके, सो दिस इज द रीजन. अगर टुकड़ों में मास्क नहीं करेंगे तो अगर आप सिर्फ ये वाले लेग का पार्ट, ये वाले पोर्शन को देखो तो एल्बो से ऊपर का पार्ट अलग मोशन कर रहा है, यहाँ पे एल्बो से नीचे एक अलग मोशन है, और डेफिनेटली जो फुट का पार्ट है, शूज वाला पार्ट, उसका एक अलग ही मोशन है. तो उसको अगर हमें कैप्चर करना है सेम टाइम पे तो डेफिनेटली हमें अलग शेप वहाँ पे होगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द मास्क. ओके, चेक इट आउट. ओके, सो लाइक आप जब इस टाइप से करोगे ना तभी आप एग्जैक्ट चीज़ों को यू नो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे मोशन को. और मैंने बोला था, कुछ लोगों ने ये भी बोला था, ये हियर कैन सी, ये टॉर्सो वाला जो पार्ट है, सी. ओके, तो इसमें एक ट्विस्ट है. जैसे कैरेक्टर हमारा जब वॉक कर रहा है, ओके, तो कैरेक्टर हमारा वॉक कर रहा है तो ये जो दूसरे साइड का जो हाथ है, ओके, वो कुछ फ्रेम में दिखता है. जैसे आप इस फ्रेम में देखेंगे तो इस फ्रेम में मेरा हाथ यहाँ पे दिख रहा है, और फिर कुछ फ्रेम ऐसे आएंगे जब ये लाइक ओवरराइड हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी हाथ नहीं होगा. तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि बच्चों का कि भाई उस केस में क्या करें. तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका जो मास्क है जो आपने बनाया है उसको उठा करके सीन से बाहर रख देना है, या फिर जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा शेप है, यू कैन सी, ये हाथ वाला शेप मैंने सेलेक्ट किया हुआ अभी, यू कैन सी. तो जब हाथ फ्रेम में मेरा आता है, यू नो, सीन में जब मेरा हाथ आता है तो जैसे जैसे हाथ देखना स्टार्ट होता है, यू कैन सी, मेरा जो मास्क है वो भी उसके साथ वहाँ पे एक्सपेंड होता है और फिर ये इस तरीके से आ जाता है. कैन यू सी दिस? ओके, और बाकी पार्ट में आप, मैंने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया है तो लाइक दिस इज ओके. या फिर आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इस मास्क को उठा करके सीन से बाहर भी रख सकते हो. ठीक है, सीन से उठा के बाहर रख दो और जिस फ्रेम पे जब वो चीज़ अपीयर हो रही है आपका, तो आप उसको उठा के वापस ले आओ. ओके, सो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू नो, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ फ्रेम के लिए हमारे सीन में होती हैं, बाकी में नहीं होती हैं. तो सर उस फ्रेम में हम क्या करें? तो उस फ्रेम में आप अपने मास्क को उठाइए और बाहर रख दीजिए, या फिर कहीं ओवरलैप करके भी आप अपने सीन में उसको रख सकते हैं. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? Just put yes or no because this is something very common. Okay. सर जहाँ दो मास्क ज्वाइन हो रहे हैं एक टाइम पे, उस पे मतलब ब्लैक आ जा रहा है बीच बीच में जो फ्रेम में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फुटेज निकालते टाइम? Yes, I'm coming to your question, तुषार. मैंने जो बात यहाँ पे बताई वो सबको क्लियर है? डिसेबल नहीं कर सकते मास्क? बिल्कुल कर सकते हैं डिसेबल मास्क, पर क्यों डिसेबल करना चाहते हैं आदर्श? बिल्कुल मास्क को डिसेबल किया जा सकता है. ओके, डिसेबल करने का मतलब है, ओके, आई थिंक यू आर आस्किंग कि मतलब डिसेबल करके उसको नहीं रख सकते. ओके, सी, डिसेबल करना इज समथिंग, यू नो, जैसे पर्टिकुलर आप नोड को डिसेबल करते हो ना, तो आप इस नोड के अंदर देखो, मैंने यहाँ पे पेंट वाला नोड यूज किया है, दैट इज रोटो पेंट. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने बात कर लिया है यहाँ पे रोटो एंड रोटो पेंट. तो मैंने यहाँ पे पेंट का नोड यूज किया है. ओके, और आप देख सकते हो कि मैंने लेयर्स में अपने सारे मास्क को बनाए हैं. ठीक है, जितने मास्क उतने लेयर्स, राइट. तो यहाँ पे डिसेबल करने का क्या मतलब होता है? अगर आप विजिबिलिटी उसकी बंद कर दो भाई तो बंद हो जाएगा, मास्क ही बंद हो जाएगा ना आपका.
और दूसरा डिसेबल करने का बात है तो आप नोड को डिसेबल करो ना बेटा, तो नोड को जब डिसेबल करोगे तो पूरी पूरी की पूरी कहानी डिसेबल हो जाएगी ना, राइट? समझ में आ रहा है? तो उसको आपको नहीं चाहते हुए भी विशाल, सॉरी आदर्श, आपको उसको एनिमेट करना पड़ेगा। जिस फ्रेम पे चीजें आ रही हैं उस फ्रेम पे उस मास्क को लाना पड़ेगा, और जिस फ्रेम में सीन में ऑब्जेक्ट नहीं है उस फ्रेम में उसको उठा के बाहर रखना पड़ेगा। दिस इज ओनली द मेथड। ओके, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी और का भी था। तुषार, व्हाट आर यू आस्किंग? वेयर इज तुषार? तुषार, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? प्लीज रिपीट योर सर क्वेश्चन। सर एक्चुअली मैंने पूछा था जो दोनों मास्क का जॉइनिंग पॉइंट होता है वो कुछ फ्रेम के लिए जो ब्लैक हो जा रहा है ना, तो फुटेज निकालते टाइम उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ? जैसे दोनों हिप से नी तक है, नी से बाकी तक नीचे का हिस्सा है, वो जो दोनों मास्क का जॉइनिंग पॉइंट है वो बीच में ब्लैक हो जा रहा है, मतलब कोई कोई फ्रेम में। ब्लैक हो जा रहा है? ओके, लेट मी जस्ट चेक। ओके, लाइक ये ब्लैक पॉइंट की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, यही Okay. बोल रहा हूँ। Okay, Tushar, this exercise I have done only to teach you people. Okay, so this is the rough mask that I have done. और बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, क्यों नहीं होगा? ओके, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानबूझ करके यहाँ पे मैंने इस टाइप से चीजों को बनाया है ताकि इस चीज को मैं समझा सकूं। ये पढ़ाने के लिए बनाया बेटा। तो ये चीज आप देखो कि यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ा है और कहीं पे मैंने यहाँ पे शूज वाले पोर्शन में मैंने उसको कवर भी किया है, राइट? गेटिंग इट? ये वाले इंटरसेक्शन को मैंने मैनेज किया है, ये वाले इंटरसेक्शन में मैंने गड़बड़ की है। गेटिंग इट? तो यस लाइक सर। ये कुछ फ्रेम मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इंटेंशनली बनाए हैं ताकि हम इस पे बात कर सकें। और बिल्कुल यहाँ पे बात करने का सेंस ये है कि ये छोड़ने का सेंस ये है कि आप इस चीज को समझो कि जब आप इंटरसेक्शन बना रहे होते हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इंटरसेक्शन बनाने में यहाँ पे लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है? और ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो इंटरसेक्शन का स्टाइल ये कहता है कि जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने रफली मास्क बनाया था। जस्ट वेट। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, जब भी आप मल्टीपल मार्क्स बनाते हो तो हमेशा आपके साथ इंटरसेक्शन का केस बनना ही बनना है। तो उसमें मैं बहुत साफ शब्दों में आपको बोलना चाहता हूँ कि इंटरसेक्शन जब भी होगा ना तो ये पूरा फुल ओवरलैप होगी चीज, ठीक है? इसमें बिल्कुल ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, खास करके ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, ठीक है? कि मैं इसको कट टू कट रखूं। नो नो नो, कट टू कट रखेंगे तो यही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस टाइप से अगर मैं रखूंगा या कट टू कट रखूंगा तो सीन फिर वहां पे ब्लैक होल प्रेजेंट होने के पूरे चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज आई हैव इंटेंशनली डन टू टीच यू पीपल, डोंट ड्रॉ दिस टाइप ऑफ overlapping. Okay, the overlapping should always be something like this, something like this, you can see। और आप एक्स्ट्रा जितना ले सकते हो ले लो, बिल्कुल उसमें शर्माओ मत, यू कैन सी। क्योंकि ये कॉमन है, जो नीचे वाले मास्क पे भी है, मतलब शूज वाले पे भी है, और ये पैर वाले पैंट वाले पार्ट में भी है। तो ये अपनी जगह पे जैसे भी है, दैट इज फाइन, दैट इज ऑल ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक हम लोग और यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि किसी ने मुझे कल कहा था कि लाइक पूरा सर पूरा एक साथ मास्क कर देंगे और ऐसे करेंगे, क्या डिफरेंस आएगा? तो मुझे नहीं पता आज के सेशन में वो है या नहीं है, ठीक है? आई थिंक गिरी रंगनाथन, यू हैव पुट इन दिस यस, क्वेश्चन, यस राइट? सर। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, आप चीज़ों को समझिए। मैंने इस टाइप से इसको मल्टीपल मास्क में चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है। नाउ इफ यू कैन स्विच द अल्फा चैनल, ओके, so this is my alpha। Okay, if you can see the alpha,
ओके, सो यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे मोशन आपको बहुत साफ सुथरा दिखता है अगर आप देखेंगे तो, कि चीज किस टाइप से मोशन कर रही है। और जो मेरे ब्लैक होल्स है या कुछ भी गड़बड़ मैंने किया है, दैट ऑल आई कैन फाइंड इन माय अल्फा। चेक इट आउट, बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि मोशन में क्या हो रहा है। लुक, ओके, सो लाइक आप जब इस टाइप से मास्क करते हो ना, तो मोशन कुछ इस टाइप से निकल के आता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। हर पार्ट एक अलग मूवमेंट कर रहा है, और आप उसको सेपरेटली एक मास्क के थ्रू कैप्चर करते हो। और अगर आप सिंगल मास्क में जाइएगा तो आप ये काम नहीं कर पाइएगा, चाह के भी नहीं कर पाइएगा। और इसको समझने के लिए आई से कि जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट। ओके, हम 4 फ्रेम, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 फ्रेम भी मास्क करके उसको प्ले करोगे अल्फा में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। यदि तो अगर इसी चीज को मैं अगर सिंगल फ्रेम में अगर मास्क करूंगा, तो ये मूवमेंट कभी भी मैं इस टाइप से नहीं निकाल पाऊंगा, जिसमें शूज का पार्ट बिल्कुल एक अलग एंगल में एक अलग मोशन कर रहा है, और फिर सारे ये जो 2 मास्क हैं मेरे ऊपर के, वो भी बिल्कुल अलग मूवमेंट कर रहे हैं, राइट? So to best analyze your roto or motion, like the best thing where from where you can observe the thing is called something called alpha. Okay, so how to switch alpha? These are the channels through which you can switch the alpha, or you can also use some shortcut here. So like A is there, if you're supposed to hit A, automatically it will switch to the alpha, or this is like the RJ. Okay, so is this question is this concept is clear to all of you? यहाँ यस तक सर। बातें समझ में आई क्या? सर यस यस यस। ये मतलब जो मास्क कर रखा है वो हर एक फ्रेम में नया नया मास्क बनाना पड़ता है, या इसी को मॉडिफाई करके लेके जाते हैं की फ्रेम के जरिए? हर बार नया नया मास्क बनाना पड़ता है या एक ही मास्क को मॉडिफाई करते हैं? दिस इज योर क्वेश्चन? यस सर। ओके ओके, नहीं नहीं, हम लोग अभी मैं मास्क बना के दिखा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अभी तक जो जो जितनी बातें हुई उतना समझ में आया क्या? यस मैं यहाँ सर। पे मास्क बना रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। If you can see, this is the footage. Okay. So I'll take a separate roto paint here. Okay. So just connect it. Take the बीजे टूल। दूसरी बात एक ये भी है कि इससे पहले कि आप फुटेज को स्टार्ट करो मास्क करना, किसी ने ये भी क्वेश्चन उठाया था कि हाउ टू फाइंड which frame is suitable to start masking. This is a huge question and big question. अगर इसमें गलती कर गए तो पूरा टाइम आपका खराब हो गया। अगर आप सही फ्रेम को पकड़ करके आपने मास्क नहीं किया, फर्स्ट फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि किस फ्रेम से हम लोग मास्क बनाना स्टार्ट करें या अपना एनिमेशन स्टार्ट करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर इसमें गलती हुई तो समझ लो कि मतलब डबल दुगना या तिगुना मेहनत लगने वाला है, ठीक है? तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है गाइस, इसको सिंपल तरीके से सोचो कि आपको कैरेक्टर, आपका सब्जेक्ट है, आपको मास्क करना है, तो डेफिनेटली आपको पूरा कैरेक्टर मास्क करना है। तो आप कोई ऐसा फ्रेम निकालो या कोई ऐसा फ्रेम देखो जहां पे आपके सब्जेक्ट का पूरा पार्ट कैमरे में आ रहा हो, दिख रहा हो, राइट? सो दैट आपको बाद में आगे चल के उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से मास्क न बनाना पड़े। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा कोई सीन हुआ तो हम आगे मास्क नहीं बना सकते। आई एम नॉट सेइंग दिस, ओके? व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें एक ऐसा फ्रेम चूज करना चाहिए
जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट की जो विजिबिलिटी होती है, जो दिखने की तरीका होता है, उसका मैक्सिमम पार्ट हमें कैमरे में हमारे फ्रेम में आ रहा हो। सो दैट अगर ऐसे फ्रेम को देखोगे, इस टाइप के फ्रेम को, तो यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक दोनों पैर, दोनों हाथ और सब कुछ लाइक सारे पार्ट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से विजिबल है। इनफैक्ट ये भी फ्रेम में, जैसे ये फ्रेम है तो ये भी फ्रेम मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये पैर का ये पार्ट आपका छुप रहा है, ठीक है, हाथ का भी काफी कुछ पार्ट यहाँ पे छुप रहा है जो आगे चल करके पूरा दिख रहा है। तो आई थिंक इस टाइप के जो फ्रेम्स है ना, इस टाइप के जो फ्रेम्स है, दिस आर लाइक द एक्चुअल फ्रेम जहां से आप इसको मास्क करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट, ताकि बाद में आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं आए। अगर यहाँ पे होगा क्या कि अगर इस टाइप के फ्रेम से आप बनाना स्टार्ट करोगे, तो जैसे यहाँ पे दूसरा वाला हाथ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ी देर के बाद वो एक अलग से हाथ आएगा, तो उस केस में फिर आपको एक दोबारा अलग से चीज को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक वो फाइनली आपको करना ही पड़ेगा, समझ लो। तो इट्स बेटर कि आप एक ऐसा फ्रेम देख लो जहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से विजिबल हो रही है, क्योंकि अलग अलग सीन में, अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग मोशन में अलग अलग सिचुएशन बनता है। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास सिर्फ कैरेक्टर है और इस टाइप का मूवमेंट है, तो आपको लगेगा सर क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी बना लूंगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलग अलग सीन में, अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग मोशन में फर्क पड़ता है, right? So different footage will always create you the different challenges in case of your rotoscopy. So well in that case आप एक सही फ्रेम ढूंढो जहां से आप चीजों को मास्क बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो सर यस। एक्चुअली मैं पूछना चाहता था सर, मास्किंग तो एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी पड़ेगी। जैसे हमसे जो मास्किंग करवा रहा है, अगर उसे पहले फ्रेम से ही लास्ट फ्रेम तक चाहिए तो हमें पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक करना पड़ेगा वहां, मतलब बीच में से हम हाँ कोई तुषार, पर्टिकुलर फ्रेम उठा के नहीं कर सकते सर। राइट 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 तुषार, बट देखो देश आज़ाद है, हम लोग भी आज़ाद हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है बेटा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 168 फ्रेम पे हम लोग मास्क बना रहे हैं, तो बाद में उस मास्क को हम लोग पीछे भी जाके एनिमेट कर सकते हैं और उस मास्क को जाके आगे भी एनिमेट कर सकते हैं। तो जो हमारा एनिमेशन है, जो हमें मास्क करना है, वो हमें पूरा ही फ्रेम करना है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि कौन से फ्रेम से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अगर हम 168 फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे के फ्रेम हम छोड़ने वाले हैं या फिर आगे के फ्रेम छोड़ने वाले हैं। हम लोग पीछे भी कवर करने वाले हैं और आगे भी कवर करने वाले हैं। हम लोग स्टार्टिंग फ्रेम हमने ऐसा कुछ ढूंढा है कि यहाँ से भाई स्टार्ट करो तो ज्यादा आसान होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं। गुड गुड, ठीक है।
Okay, Vishal, I have got a question from your side that you are asking about कि like एक मास्क बना हुआ है तो उसके अंदर फिर दूसरा मास्क को कैसे यू नो कुछ इस टाइप से एक मास्क बना है और उसके अंदर से इतना पार्ट आप माइनस करना चाहते हो. Is it your question? Like कब का आपने एग्जांपल दिया है विशाल? Yes, okay, thank you. देखो विशाल, वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन मास्किंग ऑप्शन. लाइक अगर हम कोई चीज़ को ऐसे मास्क करते हैं तो ये हमारा मास्क एरिया होता है. दूसरा, अगर मैं एक और मास्क यहाँ पे लगा के इसको माइनस बोल दूंगा ना, सब्ट्रैक्ट बोल दूंगा, तो इतना एरिया यहाँ से माइनस हो जाएगा. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट, बट हियर वी हैव द ऑप्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, here we have the option of subtraction in mask, Vishal. Okay, Okay, sir. fine. So let's start masking the thing. Okay, तो मैं एक पैर का आपको मास्क बना के यहाँ पे दिखाता हूँ कि what is the ideal way to create this mask, and specifically, you know, the intersection. Okay, and check it out. is make it zoom as much as possible जहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. ठीक है, और कुछ लोगों को इट्स लाइक यू नो लुक एट दिस. तो मैं इस शूज को माइनस कर रहा हूँ, बट आप अगर मेरा यू नो जैसे ये यहाँ पर एक शूज का शायद लेस है जो यहाँ पे हवा में आप देख सकते हो, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या सोचते हैं आप उसके बारे में कि उसको उसके साथ लाइक लेस के साथ क्या किया जाए. जैसे फिलहाल के केस में तो मैंने उसको स्किप कर दिया है. ओके, सो हियर आई हैव मास्क दिस. ओके, जस्ट for a moment I'll just make this alpha. Okay, so now here you can see this is my selection line that I have decided to mask this shoes, but here you can see we have something which is missing here. So well, in that case आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करते हो? सर एक ओपन स्प्लाइन और उसे फेदर कर देंगे. Yes, और I think this answer is from Vishal, right, Vishal? यस सर. Okay. What about the other people? Okay, guys, yes, Vishal is right. Okay, so that kind of selection is known as open poly. What is it? Open poly. Okay, तो दैट मीन्स उनका कहने का मतलब है कि एक लाइन सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और लाइन की जो विड्थ होगी ना, वही अपने आप में इसकी मास्किंग कंसिडर की जाएगी. राइट सर? यस सर. Okay, so that is the concept of open poly. We will also discuss that. Specifically आप ऐसे सोचो कि जैसे कैरेक्टर है उसके हेयर्स उड़ रहे हैं. ओके, तो वैसा कुछ अगर मान लो हेयर्स उड़ रहे हैं तो उनको मास्क करना है, तो भाई कैसे मास्क करेंगे, क्योंकि हेयर्स की थिकनेस इतनी होती नहीं है कि उसको डबल पॉली से ऐसे सिलेक्शन किया जाए. तो उस केस में हम लोग ओपन पॉली का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. हियर आप इसको समझने के लिए हेयर का एग्जांपल ले सकते हो, ग्रासेस का एग्जांपल ले सकते हो, इस टाइप की चीज़ों का एग्जांपल ले सकते हो. Okay, the next what we are talking about is the number of vertex inside your selection. This is a big question. Okay, तो और ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें हम लोगों को शेप बनाते समय, मास्क बनाते समय ही जज करनी है और उसको ठीक करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लो कि एक बार जैसे आपने गलती कर दी और आपने एनिमेशन स्टार्ट कर दिया, तो वेल ऐसा नहीं है कि आप फिर बाद में जाके किसी वर्टेक्स को डिलीट कर रहे हो. स्पेसिफिकली डिलीट वाला जो पोर्शन है ना, ये तो बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता है. यू कांट डिलीट द वर्टेक्स वंस व्हेन यू स्टार्ट द एनिमेशन विथ योर मास्क. कांट यू डिलीट द वर्टेक्स, क्योंकि अगर आप वर्टेक्स डिलीट करोगे ना तो होगा क्या कि आपके एजेस फ्लिप करना स्टार्ट कर देंगे. समझ रहे हो? फ्लिपिंग, एंड दैट इज इन VFX लैंग्वेज we are taking that flipping as a jerk. Okay, तो अगर आप सोचो कि पिछले फ्रेम में एक वर्टेक्स है और अगले फ्रेम में ये वर्टेक्स चला गया, डिलीट कर दिया, गायब कर दिया आपने, तो डेफिनेटली वो जर्क क्रिएट करेगा. तो एडिशन के खिलाफ तो शायद नहीं है ये मेथड. आप आगे चल करके अगर आपको ऐड करना है तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन डिलीट वाले मामले में फंसोगे.
तो डिलीट नहीं करना है आपको, मेक श्योर। तो स्टार्टिंग में ही जो भी आपको करना है वो कर लो। तो एक बार अपने शेप को बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसको रिफाइन करना है। रिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी शेप के साथ आप जितने कम वर्टेक्स लेकर के चलोगे, ओके, आपका जो आगे का रूटों का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है वो उतना सिंपल हो जाएगा। और अगर आप जितना ज्यादा वर्टेक्स को कैरी करके लेके आगे बढ़ोगे, आपका आने वाला जो रोटोस्कोपी है वो उतना लेंदी हो जाएगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है लाइक, तो फिर स्टूडेंट क्या सोचता है कि एकदम दूर दूर ड्रॉ करता है और एकदम दूर से जैसे यहाँ पे क्लिक किया, टो पे क्लिक किया, उसके बाद वो सीधा क्या करेगा कि वो सीधे यहाँ पे इधर क्लिक कर देगा, ठीक है, सीधे इधर क्लिक कर देगा। तो लाइक उसको क्यों, उसको इतना वर्टेक्स बचाना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर जो एक्चुअल शेप है वो तुम कभी सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे भाई, राइट? तो नियम ये कहता है कि इन द इनिशियल स्टेज, अभी के टाइम में जब हम लोग मास्क बना रहे हैं, तो हमने तो कोई एनिमेशन अभी ऑन किया नहीं है, अभी तो सिंपल मास्क बना रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आपके पास पूरी आजादी है, आपको जितना वर्टेक्स लगता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिलेक्शन आप बिंदास उसमें वर्टेक्स डालो। और एक बार वर्टेक्स डालने के बाद अब उसको आप रिफाइन करो, ठीक है? तो रिफाइन में क्या करना है, लाइक कैसे करना है, तो आपको ये देखना है कि भाई कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जिसको अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो मेरे शेप पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड हियर वी हैव द रिमूव पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, तो हो रहा है गैप क्रिएट, तो होने दो। और आप इसी चीज को हम लोग यहाँ पे हैंडल से ट्राई करने की, कवर करने की कोशिश करेंगे, टेंजेंट से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो बाकी हमारे पास वर्टेक्स अवेलेबल हैं उनके हैंडल से इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट मीन्स कि वर्टेक्स कम करने का मतलब ये नहीं हुआ, समझ लो, कि हम शेप के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले भाई, हम 100% ही चीज को लेके जाने वाले हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्टाइसेस हैं उनको हम रिमूव करेंगे। अब लोगों को क्या है, लोग ऐसा सोचते हैं कि जब यही करना है तो स्टार्टिंग में ही कर लेंगे। तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे ना, तो आप कभी भी एक्चुअल शेप को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो शेप है आप उससे वंचित रह जाएंगे। So this is like the very very important concept, right? Okay. Similarly, you can see यहाँ पे कुछ points हैं, so I'm not in favor of these points. Okay, मैं इसको almost ये round जैसा ही shape है, तो मैं इसको ऐसे कुछ cover कर लूँगा। And this point will be here. Later on यहाँ पे आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, यू कैन जस्ट पुट अ पॉइंट, यू कैन ऑल्सो ऐड इट, और थोड़ा सा इसको अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है? सर यस। सर मान लो कि आपने ऐसे पूरे अच्छे तरीके से ये मास्किंग कर लिया, अगर हाँ बाई चांस ये जो बंदा है ये 90 डिग्री उस साइड को, लेफ्ट साइड को मुड़ रहा है, तब ये शू का जो पॉइंट आ रहा है वो तो उस साइड जाएगा, वो दिखेगा नहीं हमें। तब ये जो मास्किंग का लाइन वगैरह ड्रॉ किया है वो सारा एक जैसा वर्टेक्स, सारा एक जैसा एक साथ आएंगे, तो एडिटिंग के टाइम में दिक्कत नहीं आएगा कि एक कौन से वर्टेक्स हम पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। किसका क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन? जी। Who's asking this question? Mr. Giri Rangathan, is it your यस सर। question? यस सर। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल। वैसे सीन में देखो क्या करेंगे कि ये जिस फ्रेम तक ये फ्लो मेरा चल रहा है उस फ्रेम तक हम लोग इसको फॉलो करेंगे। और उनका कहने का मतलब एक ऐसा बात है कि कभी ऐसा भी हो
ओके to like are you guys are comfortable with the tomorrow session like कल आपको सेशन रखना है या you guys are busy with your Diwali preparation? Cancel it sir. Okay विशाल. Okay. बाकी लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे? कल What is बिजी your सबका प्लान क्या है? कल हम लोग सेशन रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सभी लोग मुझे बता दें तो सर उसके अकॉर्डिंग. फोन कर दो, जी यस यस मिस्टर गिरी टेल मी. मंडे को पोस्टपोन कर दो। मंडे को टुमारो कल की बात कर रहा हूँ. नहीं कल नहीं हो पाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। ओके तुषार वांट्स टू कंटिन्यू. ओके बाकी लोग देखो मैं सबसे पूछ रहा हूँ सो दैट किसी का कुछ छूटे नहीं क्योंकि आप लोग अगर चीजों को लाइटली ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि न्यू आपको वापस से नहीं कराया जाएगा. जो लोग छोड़ रहे हैं वो फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहे हैं कि उनको नहीं करना है. और मैं समझता हूँ कि ये आपके कोर्स का एक बड़ा सेगमेंट है, जॉब की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहता हूँ कि इसको हल्के में ना लें. ओके बाकी लोग अपनी अपनी राय रखें. तो इट्स लाइक करें कुछ लोग यहाँ पे दिवाली ओकेजन है तो मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि सुमन कंटिन्यू सर नो प्रॉब्लम. ओके सो लाइक गिव मी द काउंटिंग हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कंटिन्यू. कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो कंटिन्यू करना चाहते हैं? गिव मी द काउंटिंग. जस्ट टाइप कितने लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं एक बार मुझे बता दीजिए. ओके others quickly give me the counting guys. Aditya, only others and Aditya want to continue like और भी कोई लोग हैं? Okay, fine. So like only two people are ready to continue, others and Aditya. So नहीं सर 7 पीपल है जो कंटिन्यू करना चाहते हैं. चार्ट but चेक कर why I लीजिए am not getting the message here? सर. पहले से चार्ट्स आए हुए हैं, चेक कर लीजिए सर. Fine. So we'll discuss with Rahul sir and we'll let you know कि 7 लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं. वो 7 लोग कौन कौन से हैं? एक आदित्य है, एक आदर्श है, और कौन से लोग हैं? तो लाइक अगर पॉसिबिलिटीज होगी तो विल कंटिन्यू और नहीं होगी तो विल ड्रॉप द सेशन. Okay, only 4 people wants to continue. Vishal is saying only 4. Okay. Fine, that's fine. I'll get the round figure. It's like a approximate figure. Like कितने लोग चाहते हैं? 4 to 7. That's okay. So we'll decide and we'll put the message in group also. So like you guys will aware. अगर होता है तो भी और नहीं होता है तो भी, दोनों केस में. ठीक है. फाइन. ओके तो हम किसी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे थे. किसी ने पूछा था कि शूज बिल्कुल 90 डिग्री से फ्लिप हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे.
तो वेल उस केस में देखो अगर फ्लिप हो जाता है 90 डिग्री में, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी लोगों को, विजिबल है? नो नहीं सर। सर। ओके ओके, जस्ट वेट वेट। ओके, अगर शूज मान लीजिए कि पूरे नाइट साइड में शूज का क्या पार्ट दिखेगा, एक तो उस केस में आप एक नया मास्क बना के वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और जो एग्जिस्टिंग मास्क जो अभी तक चला आ रहा था उसको उठा करके बाहर रख सकते हो। ठीक है, कि है उसी को मॉडिफाई करने में पड़ जाओ। ठीक है, तो उसको अगर मॉडिफाई करोगे ना तो वो फिर मोशन कम, मोमेंट कम, स्केलिंग ज्यादा समझ में आएगा। तो उस केस में जो आपका फर्स्ट मास्क है उसको आप सीन से बाहर रखोगे और उस फ्रेम पे एक नया मास्क ड्रॉ कर लोगे जो शूज का सिर्फ बैक साइड आपको दे रहा होगा। ठीक है, सर इज दिस आंसर इज क्लियर मिस्टर गिरी? यस। सर मैं ये एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये फ्रेम के बाहर ये मास्क को रखते हैं, तब उस वाला जब एक फ्रेम में खत्म हो गया ये वाला मास्क का पर्पस, और नेक्स्ट फ्रेम में हम इसे बाहर रखेंगे, तो जो एक फ्रेम में जो मोशन हो रहा है मास्क का वो इस पे दिखेगा नहीं क्या? नहीं 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 दिखेगा। कैसे दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग 168 पे खड़े हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और 169 पे मैं इसको उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और फिर 170 पे, ठीक है, वापस मैं इसको लेके आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ऐसे जस्ट आई एम जस्ट, now you can see this is 169 and this is 170. Can you see this? Can you see this? ओके 169 सर। and this is 170. Okay, so ऐसा होता नहीं है। जिस फ्रेम पे बाहर है उस फ्रेम पे कंप्लीटली बाहर है, और जिस फ्रेम पे है उस फ्रेम पे ही अंदर है। ठीक है, अगर मान लो ये जो आपने बाहर रखा है ये एक सीन के अंदर ही सो कहीं एक विल कॉर्नर कंटिन्यू। पर रखें। और ये आप फिर से एक बार जरा अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ये जब बाहर लेके गए तब नहीं दिखा, बट अंदर फ्रेम के अंदर ही कोई एक साइड में रखेंगे तब वो मोशन दिखेगा? अंदर रखोगे तो लाइक अंदर कैसे रखोगे? अंदर रखोगे तो फिर वो मास्क एक्टिव रहेगा तो दिखेगा ना बेटा। अगर आपने इसको अंदर इधर रख दिया तो ये मास्क अपने दिखेगा ना, ये तो बिल्कुल दिखेगा। अंदर नहीं रखते उसको, सीन से बाहर, बाहर मतलब बाहर। नहीं, ठीक है, मैं ये अंदर रखने का कोई अंदर प्रावधान अंदर नहीं। रखेगा तो मास्क का पोर्शन दिखेगा, वो मेरे को पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ जो मोशन हो रहा है मास्क का, क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं की फ्रेम जैसा, तब वो जो मोशन हो रहा है कि इधर से उधर जाने का वो मोशन वो दिखेगा ही, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं 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 मास्क नहीं दिखेगा? दिखेगा सर, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इफ योर क्वेश्चन इज कि 169 में बाहर है, 170 में अंदर है, तो ये आने का मोशन दिखेगा क्या? दिस इज योर क्वेश्चन। यस सर। हाँ, नहीं नहीं दिखेगा, डोंट वरी अबाउट इट, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द मीनिंग कि बाहर का मतलब बाहर और अंदर का मतलब अंदर। सो डोंट वरी, ना आपको फाइनल आउटपुट में दिखेगा ना आपको अल्फा में दिखेगा, कहीं नहीं दिखने वाला। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके। yeah, so we'll continue the session. Might be like if there will be tomorrow session will continue, या नहीं होता है तो फिर हम लोग लाइक उसके बाद दिवाली वैकेशन होगा तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अटेंड करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं। बट फ्रॉम द स्टूडेंट परस्पेक्टिव मैं समझता हूँ कि ये आपके कोर्स का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर जो लोग कर सकते हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है।
One more thing, just put your attendance before you guys will leave. Just put your attendance. सर एक क्वेश्चन था, एक और, जहाँ मोशन चेंज हो रहा है वहां हम हाँ। ट्रैकर लगा के ट्रैकर जिस मतलब ट्रांसलेट हो रहा है एक्स या वाई में, वो डेटा का यूज करके रोटो को मूव नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तुषार। तो अभी ये दैट इज कॉल्ड एडवांस रोटो। ओके, वो हमारा सेशन है ठीक है सर। एडवांस रोटो, उसमें मैं बताऊंगा। और अभी तो हमने ट्रैकिंग डिस्कस किया नहीं, तो फिर मैं कैसे ट्रैक को कनेक्ट करूं आपके मास्क से। नहीं बट नहीं यस, नहीं सर, मैं बस पूछ नहीं, नहीं मैं नहीं, पूछ रहा यस था सर बस। यस, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस तुषार, विल डू दिस। ठीक ओके, है सर, थैंक यू सर, यस यस यस, थैंक यू सर। ओके।